Hello, everyone. Thank you for joining us today. So, those who know me and those who don't know me. So, my name is Vikas, and I'm a curator, art consultant, and founder of Artlion, an online platform supporting emerging and mid-career artists. To our extreme honors today, we have been joined by Shelly Gupta. Shelly Gupta is an emerging artist hailing from Delhi. How are you, Shelly? I'm good, Vikas, and hello everyone. Thanks for joining this session. Thank you. Thanks a lot. I think because of technical errors, there might be some audio and video lag, but please bear with us. We'll make sure that you hear everything all the way towards the end. Sounds great. And if so how I would love to introduce Shelly, but I know if I cannot take the center stage because today's guest is Shelly, right? So Shelly, would you like to introduce yourself? Yes, sure, Vikas. Thank you so much. Myself, Shelly Gupta, and I'm a Delhi-based artist. So I'm working right now on women desires, women sexual desires, and ongoing exhibition Desire Without Apology with Artloon. And please have a look about the exhibition and artworks. So first of all, about my artworks or my career. I did my master's in from Kurukshetra University, MFA, and my bachelor's BFA from the College of Arts, Delhi. So, about my art practice, I'm doing visual artwork in mixed media. And my concept and theme about the women's sexual desires, and same in the exhibition Desires Without Apology. You can see the whole series. Please have a look, everyone. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Shelly, for a lovely introduction. Right. So it's a okay. So it's a conversation. It's not a Q&A kind of thing, right? So if you have any doubts, please comment below, and we'll be more than happy to answer. So Shelly, when did you first realize? It's because I know Shelly since 2023, I believe, right? Or because Yeah. Shelly was one of our participant artists in our first project called Identity, and that's when we first met Shelly. And since then, I had tons of questions. So today, finally, I got this opportunity to ask Shelly, right? So Shelly, Yeah. when did you Yes. first realized you like you enjoy art, and this is something you need rather than just making it for fun? Honestly, because I realized it when silence became heavier than expression. At the time when I stopped doing art as a hobby, and when art became the only language about my expressions. So I can say that when it was not about creating something beautiful anymore, it was about myself, it was about expressing myself and my emotions. So at that time, I can say that when doing the artwork and uh, becoming becoming an artist, like it is a process, one way process. So you can say, you can see when childhood, when we doing art in childhood time. So we are doing some scribbling work, and it is like a hobby, and we are doing, we were making some paintings like a flowers and something, like kids are making painting and showing some beautiful things. So that time I was doing some beautiful things, but when we become an artist, we saw that we are expressing ourselves, and we are showing our themes and emotions with the help of art. So I can say that. Oh, that's interesting. I liked how you said when art become a language to express, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं
जिस वजह से शब्द हम नहीं यूज कर सकते, राइट? और बहुत सारे, आई डोंट नो, कई बार कई इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं होते, राइट? सो Yes. दैट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड, जब आर्ट इकलौती लैंग्वेज होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के Yes. लिए। सो so I Mm. have another like interesting thing, बी बीइंग एन आर्टिस्ट, आपने जब पहली बार अपने परिवार वालों को बताया कि मम्मी पापा मुझे आर्टिस्ट बनना है, सो उनका क्या रिएक्शन था कि मेरे को ये करियर लेना है, और कैसे आपने फाइट की या नहीं की, क्या था वो सब? Honestly, because it was not difficult for me because हम्म, my father and grandfather was also from the same field. You know that when ये we discussed about this. So my father was also from the same field and he always supported me. I can say that if I am doing and I am pursuing my career in this art field, it's all because of my father. He did all the stuffs. He filled my forms. He helped me in the preparation of entrance. So I never faced this problem. I never faced because he chose this career for me. I never choose this career. बल्कि उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ प्लान किया. So I'm blessed. I'm totally blessed. So जो बाकी बच्चे फेस करते हैं मैंने ऐसा फेस नहीं किया. ट्रू, दैट्स ट्रू, क्योंकि इंडिया के अंदर बीइंग एन आर्टिस्ट बहुत आसान नहीं होता, It is राइट? it is very difficult, very difficult. बहुत ज्यादा Not फाइट। not only pursuing in this field, the difficult part is surviving because survive करना art में India में especially it is totally different thing. ट्रू, ट्रू, आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री। लोग अपना करियर छोड़ देते हैं Yeah. सो दैट दे Yes. कैन Yes. अर्न Yes. देयर ब्रेड एंड बटर और पे सम बिल्स, राइट? जिस चीज को वो Yeah. सबसे ज्यादा चाहते थे, उस चीज के लिए अब वही चीज नहीं कर पाते, राइट? Yes. यस, सो यू सेड कि आपके फादर ने ये करियर चूज किया आपके लिए, राइट? सो एक बहुत Yeah. इंटरेस्टिंग सवाल इससे आता है कि अगर आप आर्टिस्ट नहीं बनते तो क्या बनते? क्या क्या होता अगर शैली गुप्ता इज नॉट एन आर्टिस्ट? हु इज शैली गुप्ता देन? I don't know. Honestly, I don't know because I never think beyond art. I never think I still I would still be searching कि मैं क्या करती, maybe some functioning, maybe some successful career in other field or I think art it's just not giving me a profession. It gave me an identity. So मेरे लिए maybe डांस कह सकती हूँ मैं because I did my bachelor's also in dancing. I did Prabhakar in Kathak dance. So maybe in dancing you can, yeah, I don't know. Dancing is also a art field. So in the ट्रू, end रहती मैं artist ही. Yeah. सही बात। नृत्य, देन इट विल बिकम नृत्य, Yeah. नृत्यांगना, राइट? दैट्स सो Yeah. इंटरेस्टिंग, Yeah. दैट्स ट्रू। और नाट्य शास्त्र भी फाइन आर्ट्स के साथ ही पढ़ाया जाता है। ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल विज़ुअल आर्ट में ही आपका ये काउंट किया जाता है, सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग। सो कुछ भी होता मैं कनेक्ट आर्ट से ही रहती। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको याद है, या, इट्स अ वेरी, इट्स अ लाइक, आई डोंट नो, हर मैं जानना चाहता हूँ, आपने जब सबसे पहली बार कोई आर्टवर्क बनाया था, राइट? जो आपने कहा कि या। ये मैं हूँ, लाइक ये एक्चुअली में मैंने बनाया, राइट? सो वो कैसी फीलिंग थी? Oh, yeah, I can remember that when I was in the fourth year, last year of my bachelor, it was the 1 week of weaving, additional subject. Weaving was my additional subject. So my teacher said to make, मतलब, to create something different with weaving. Like you can make any mixed media or you can make some weaving carpet or something. So at that time, I made
one artwork you can see in the exhibition series also, Earlier. Unclawed Desire series. Yeah, Unclawed Desire series. So one artwork, 20 inches by 20 inches, I made that with weaving, and I weave on canvas and use some stuff like a cloth and wood, or some scrap from cloth. So the theme was very bold, like Unclawed Desire with a nude female figure. That was the first artwork जो मैंने nude बनाया था. So at that time, I feel that like it is me. Yeah, yeah, you can say that it is me. And I at that time I stopped trying to impress, and I started trying to be honest with myself. Like मैंने उस मोमेंट पे ये डिसाइड किया कि ये जो काम है, यही मेरी आइडेंटिटी बनेगा, और मैं इसी चीज़ में परस्यू करूँगी, बिकॉज़ जो मेरे अंदर एक बोल्डनेस थी, वो मैं कभी एज़ अ पर्सन नहीं शो कर पाई, जो मैंने उस आर्ट वर्क के थ्रू शो किया. लाइक इफ यू वर स्टडिंग विद मी, अगर आप मेरे साथ पढ़ते तो आप मुझे कहते कि ये कितनी शाय गर्ल है. एज़ अ पर्सन मेरी एक पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट थी, और वो आर्ट वर्क मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ऑपोज़िट था. बट उस मोमेंट पे ऑनेस्टली मुझे जो फ़ील हुआ, आई वाज़ नॉट अशेम्ड टू शोकेस माय आर्ट वर्क. मुझे जितना वो बोल्ड आर्ट वर्क था, मैं खुद भी एज़ अ पर्सन बहुत बोल्ड फ़ील कर रही थी. तो वहाँ से यू कैन से कि वो एक जर्नी स्टार्ट हुआ. तो ये हवला ऐसे लाइक तो पहली बार आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया एज हु यू आर उस काम के थ्रू. यस, वो मैंने हमेशा ये चीज़ कही है, लाइक डिज़ायर जो है वो एक्सेप्टेंस से आती है. एक पर्सन के अंदर अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो वो आर्ट वर्क मुझे एक डायरेक्शन भी दिया, प्लस एक एक्सेप्टेंस एज़ अ पर्सन खुद को जानने के लिए, और प्लस एज़ अ आर्ट जर्नी में भी आप जब एक अपने काम को एक्सेप्ट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है. तो वहाँ से एक एक्सेप्टेंस हर चीज़ में, एज़ अ करियर, एज़ अ प्रोफ़ेशन, एज़ अ पर्सनल, हर चीज़ में एक एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और वो साथ में कनेक्टेड है. हर चीज़ साथ में कनेक्टेड है. फेयर इनफ एंड वाइजली सेड कि हर चीज साथ में कनेक्टेड है. अनलेस एंड अनटिल जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते. या 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 तो ऐसा कॉलेज, क्योंकि कॉलेज बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होता है जिंदगी का, राइट? और आई थिंक जो भी हमें देख या रहा है वो सब एग्री करेंगे, राइट? सो कोई बिल्कुल. ऐसा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जो आर्ट स्कूल में आपके जहन में उतर गया कि आर्ट स्कूल है तो यार ये तो होना ही चाहिए और ये हो रहा है, ये मतलब असली कॉलेज है ये. फन. फन तो कॉलेज लाइफ और फन दोनों आपस में कनेक्टेड है. बट अगर खाली कॉलेज में अगर हम बात करें, एवरीवन एक्सपीरियंसिंग सम फाउंडेशनल वर्क. लाइक जब आप कॉलेज में एंटर करते हो, आपको अपने फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता लगती है. लाइक यू यू आर लर्निंग सम टेक्निक्स, यू आर लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर वर्क, some how to express your artwork, how to express yourself, और ये सारी चीज़ें एक लर्निंग प्रोसेस है. बट along with this, आपके लिए और भी प्रोफेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है. लाइक इन कॉलेज टाइम मुझे याद है थिएटर मुझे बहुत पसंद था. जैसे बाकी मैं कभी करती नहीं थी. आई वाज़ सो बैड इन एक्टिंग, मुझे नहीं आती. मैं डांस में ही बहुत अच्छा करती हूँ. मैंने करा है कॉलेज टाइम में डांस. एवरी ईयर आई परफॉर्म्ड इन एनुअल फंक्शंस. सो बट थिएटर एज़ अ नुक्कड़ नाटक, लाइक नुक्कड़ नाटक कॉलेज में हमेशा हर साल होता था. वो नुक्कड़ नाटक बहुत एक ऐसी चीज़ लगती थी जब एक हर एक पर्सन एक अपनी वॉइस को बढ़ा कर के किसी चीज़ के बारे में दूसरों को अवेयर करना चाह रहा है. लाइक सेम थिंग,
हम एज एन आर्टिस्ट अपने जो इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको एक लाउड वॉइस में अपने आर्टवर्क के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। एंड द सेम थिंग वही लोग नुक्कड़ नाटक में, थिएटर में अपनी वॉइस के थ्रू चिल्ला करके लोगों को अवेयर करते हैं कि ताकि वो सुने। सो जो एज अ कॉमन पीपल वो चीजों को कैसे अडेप्ट करते हैं, लाइक एज अ पेंटिंग देखते हैं जब, तो वो चीजों को देख के अडेप्ट करते हैं। जब वो कोई थिएटर देखते हैं, नुक्कड़ नाटक देखते हैं, तो सुन के अडेप्ट करते हैं। द मेन थिंग इज अवेयरनेस। सो आप जितना चीजों में इन्वॉल्व होते हो, आप उतना एक्सप्लोरेशन आपको मिलता है, आप जानते हो। हर चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो कॉलेज लाइफ के बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप खाली कॉलेज में जाकर के पढ़ने मत जाओ। वो चीज एक वहां तक लिमिट नहीं होनी चाहिए। जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग। हर चीज में घुसो, हर चीज में जाओ, एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो। इज मस्ट मस्ट। That's very exciting. To be honest, when you were saying, it makes me feel like I need to go to college again, right? So that's true. College is, I think, essentially very, how will I say, like college is like building years of your life, है ना? और या जब हम कॉलेज के अंदर होते हैं, तब हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कितने अपॉर्चुनिटीज के बीच में घुसे हुए हैं, राइट? बट जैसे ही या हम बाहर निकलते हैं, हमें पता लगता है, अच्छा ओ ये भी एक नजरिया था देखने का, ये भी एक नजरिया था, राइट? तो यस। हाउ, लाइक आर्ट स्कूल कैसे अलग है और कॉलेजेस से? आर्ट कॉलेजेस और कॉलेजेस में क्या डिफरेंस रहता है आपके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मी, आर्ट कॉलेज में आपको हर चीज का एक्सप्लोरेशन मिलेगा। हम्म। सेम, आपको हर एक पर्सन आर्टिस्ट मिलेगा, हर एक पर्सन क्रिएटिव मिलेगा। अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ होंगे क्रिएटिव, होंगे आर्टिस्ट भी होंगे, बट क्वांटिटी आप कह सकते हो कम मिलेगी। आपको वहाँ लोग कम मिलेंगे। या। बट आर्ट स्कूल में एक फ्रीडम है। आर्ट स्कूल की वाइब ही बहुत डिफरेंट है। वहाँ हर एक बच्चा उस आर्ट फील्ड में, और खाली ऐसा नहीं है लाइक, इफ वी हैव सम डिपार्टमेंट्स लाइक पेंटिंग डिपार्टमेंट, स्कल्पचर डिपार्टमेंट, प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड आर्ट, समथिंग। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर एक बच्चा उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो किसी और डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा। हम लोग हर डिपार्टमेंट में काम करते थे। इवन हर एक डिपार्टमेंट से जो आपको बच्चे मिलेंगे, वो आपको अलग फील्ड में भी मिलेंगे। लाइक मैं, आई नो, मेरे साथ के बहुत सारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने पेंटिंग से किया, बट नाउ दे आर डूइंग सम एक्टिंग स्टफ। वो लोग एक्टिंग में जा चुके हैं, थिएटर में जा चुके हैं, वो लोग फिल्म्स कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, हर कोई कनेक्टेड है। तो वो चीज बहुत डिफरेंट है। आपको ये नॉर्मल कॉलेजेस में, नॉर्मल उसमें नहीं मिलेगा। ये आर्ट कॉलेजेस की एक स्पेशलिटी ये है कि हर एक बच्चे को जो फ्रीडम मिलती है, बिकॉज आर्ट अपने आप में फ्रीडम है। अगर आप बाउंड कर दोगे तो वो चीज क्रिएट ही नहीं हो सकती है। लाइक व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन ही नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आई डिड मास्टर्स, वो मैंने अपने आप अचीव करा, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बाउंडेड है। लाइक जो आप दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कर रहे हो, वहाँ वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप मास्टर्स में करो। लाइक बहुत चीजें डिफरेंस थी, बट वो मेरी चॉइस थी। मैंने मास्टर्स में अपने लिए फ्रीडम खुद चूज करा कि मुझे काम कैसे करना है। दैट दैट इज माय चॉइस। बट ये जो इन्वायरमेंट है, ये बहुत जरूरी है अपने आप को ग्रो करने के लिए। सो वहां मैंने वो चीज फेस करा, वो फील किया कि इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है एक आर्टिस्ट को, एक आर्ट स्टूडेंट को अपने आप को ग्रो करने के लिए। अगर आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, देन आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। ट्रू। मैं इसमें ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो मेरे को भी लगता है, क्योंकि मैंने भी अपनी फाइन आर्ट्स दिल्ली से ही करी, राइट? तो पर आर्ट कॉलेज के अंदर ना एक चीज होती है,
वो हमको सोचने का नजरिया देते हैं, चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए आंखें देते हैं, राइट। यस, वो शब्द यस, ट्रू। देते हैं जो जो शब्द हर कोई नहीं यूज करता, राइट। यस, पर एक चीज मेरे को जो पर्सनली लगता है कि ना, वो सिखाते नहीं है कि एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को मार्केट कैसे करूं। एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट और बीइंग एन आर्ट, हाउ विल आई से, लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट और सेलिंग योर वर्क आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। मैं इंडल्ज इतना ज्यादा हो गया काम बनाने में। अब यार कोई आया, उसने बोला क्या बनाया है, ये मेरा इंटरनल थॉट है, राइट, ये मैंने फील किया है, ये मेरी डायरेक्शन है, ओके। बट अब मैं इस इंक्वायरी को सेल्स में कन्वर्ट कैसे करूं, वो स्किल सेट है जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आर्ट स्कूल को ना सिखाना चाहिए। ये बहुत बड़ा लैकिंग है इंडिया में, बिकॉज अभी भी इंडिया में आर्ट कॉलेजेस में हिस्ट्री बेस्ड ही चल रहा है। करिकुलम जो चल रहा है वो टोटली हिस्ट्री बेस्ड। हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, आई नो दैट हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, बट फ्यूचर की तरफ देख कर के क्या आगे का जो हमारा फ्यूचर है उसमें किस चीज की ज्यादा डिमांड है, कहाँ पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, उन दोनों को साथ में कनेक्ट करना चाहिए। लाइक अगर आप स्टूडेंट को पास्ट से कनेक्ट कर रहे हो, देन आपको उसको प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ ज्यादा कनेक्ट करना है, बिकॉज आफ्टर कॉलेज उसको जाना वहां पर ही है, उसको फेस करनी है लाइफ। सो वो चीज अभी इंडिया में बहुत पीछे है, ये अल, चीज है। खाली दिल्ली कॉलेज में नहीं, ये सब कॉलेजेस में आपको मिलेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, अभी बहुत पीछे है। अल से कि ना, ये इंडिया की बात नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब ये आर्टिस्टों के साथ प्रॉब्लम है। लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट, इट्स अ ट्रिकी नट टू क्रैक कि हाउ विल आई मार्केट माई सेल्फ, हाउ विल आई सेल माई वर्क। मैं बहुत खूबसूरत काम बना तो रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कैसे बनाना है, वो मैंने अपनी जिंदगी दी है बट उसमें, रहा। बट यस, यस, कैसे यस। उसे बेचा जाए और कैसे इसको थोड़ा सा इस इंक्वायरी को कन्वर्ट किया जाए, राइट। आई थिंक इससे हम लोग थोड़ा ना ऑफ ट्रैक आ गए यार, राइट, अपनी कॉन्वर्सेशन में। या 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 सो बैक टू द सर, कॉन्वर्सेशन। यस, सर्कलिंग बैक, आपने कहा कि जैसे हमने डिस्कस किया कि आर्ट कॉलेज का एम्बियंस इतना अच्छा होता है और द वे दे मेक यू थिंक, तो हमें बहुत नए नए पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, राइट। यस, यस, तो यस। कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोफेसर या फिर मेंटोर, यू डोंट नीड टू नेम इफ यू डोंट वांट, राइट, बट कोई ऐसा जिसने आपके देखने का नजरिया बदल दिया। I want to name that mentor because in my masters, my professor Mrs. Chandrima Banerjee, वो ऐसी मेंटोर थी जिन्होंने मुझे उस मोमेंट पे गाइड किया जब मुझे गाइडेंस की बहुत जरूरत थी। Like you know about my career past, like मैंने एक मोमेंट पे इस आर्ट फॉर्म को छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज माय पर्सनल रीजंस। मैंने ये सेक्सुअल वुमेन डिजायर्स के ऊपर काम करना ही बंद कर दिया था। एंड एट दैट मोमेंट मैंने एक कोई अजीब सा आर्ट वर्क क्रिएट किया एंड शी सेड कि तुम्हारा लेवल यहाँ है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे आने दूं। मतलब आप जस्ट इमेजिन, उन्होंने मुझे एक बात बोली और वो बात मुझे इतना ज्यादा डीपली मुझे उन्होंने एंकरेज करा। मैं उसको डिस्करेजमेंट नहीं बोलूंगी, उन्होंने मुझे डिस्करेज करके एंकरेज करा। लाइक शी टोटली डिनाइज कि मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगी। अगर आपका लेवल हाई है, मैं आपको उससे नीचे नहीं आने दूंगी, आपको उससे ऊपर जाना है। आज तुम किसी के कहने से ये काम छोड़ रही हो, कल को तुम कुछ और क्रिएट करोगी, देन तुम वो भी छोड़ दोगी। लाइक आप, उन्होंने मुझे एंकरेज करा टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन, टू एक्सेप्ट एंड परस्यू। लाइक आगे बढ़ो, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। डोंट चेंज योर पाथ। अगर आपको एक पाथ पे प्रॉब्लम है तो ये नहीं कि आप रास्ता ही बदल लो। आपको उस रास्ते पे अगर कोई प्रॉब्लम है, देन जंप एंड मूव। लाइक आपको आगे बढ़ना है, उस प्रॉब्लम को
छोड़ के आगे बढ़ना है, रास्ता नहीं बदलना है। सो वो चीज़ मैं आज तक नहीं भूली। आई विल नेवर फॉरगेट दैट, बिकॉज़ इस चीज़ ने मुझे एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दिया, और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइट करूँगी, चाहे कुछ भी हो, मैं फाइट करूँगी। अगर मैंने ये थीम चूज़ करी है, सो मुझे फाइट करना पड़ेगा। यही तो मेन आर्टवर्क का, मेरे थीम का यही तो एक रीज़न था कि मुझे एक्सेप्ट, अगर मैं ही अपने काम को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, देन हाउ आई विल से दैट कि सोसाइटी उस काम को एक्सेप्ट करे। सो वहाँ वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ में। सो यस, लकी यू, क्योंकि बहुत कम लोग होते या हैं आई एम जिनको ब्लेस्ड। मेंटर्स मिलते हैं जो उनके सोचने की और देखने का नजरिया बदल देते हैं, राइट? और इतना मोटिवेट करते हैं कि प्रॉब्लम रोड ब्लॉक की जगह एक हर्डल बन जाती है जिसके ऊपर से कूदा जा सकता है, राइट? आई रिमेम्बर मैंने उसी साल 2 सोलो शोज़ करे थे, एंड ऑल ओह। बिकॉज़ ऑफ हर कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप काम करो, इस पे ही काम करो। सो तब मुझे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि नहीं, मैं सही, बिकॉज़ आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि हम अगर काम कर रहे हैं एज़ एन आर्टिस्ट, हमें मेंटोर की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज़ कोई तो हो जो आपको बताए कि दैट या ये सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको इसी चीज़ में काम करना चाहिए। बिकॉज़ हमें बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, मतलब कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए या मुझे कुछ और काम करना चाहिए। सो एज़ अ स्टूडेंट, जब आप आर्ट स्कूल में होते हो, आपको जब अपना एक आइडेंटिटी बिल्ड करना होता है, तो आप बहुत सारे डाउट्स को फेस करते हो, और हर एक मेंटोर की अपनी एक व्यू होता है, एक देखने का नज़रिया होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है। सो हर एक मेंटोर अलग-अलग, अलग-अलग तरीके से आपको टीच करेगा, अलग-अलग तरीके से आपको गाइड करेगा। सो आपको वहाँ पे किस गाइडेंस को एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ट्रू। और क्योंकि हाउ विल आई, लाइक क्योंकि ना सब मेंटोर्स अपने स्टूडेंट्स का अच्छा चाहते हैं, राइट? बट सबका या क्योंकि तरीका अलग होता है तो सब अलग अलग तरीके से सिखा रहे होते हैं, तो कई बार कई चीजें फिट होती है किसी के साथ, कई बार किसी के साथ नहीं होती, राइट? बट हुँ, क्योंकि वो अच्छा चाहते हैं तो दे ट्राई देयर बेस्ट कि अच्छा ही हो इसके साथ, राइट? और एज ए हुँ, स्ट्रगल पार्ट है लाइफ का, राइट? हुँ, लाइक हुँ, अगर स्ट्रगल नहीं हुँ। होगा तो आर्टवर्क के अंदर सोल नहीं जाएगा, राइट? वो यस, कुछ यस, यस। कुछ हमें सिर्फ कुछ हुँ, पैचेस नहीं लगाने, हमें सोल डालना उन पैचेस के अंदर, राइट? यस। Yeah, so that's a very interesting insight you gave. But इससे ना एक एक सवाल है जो मेरे जहन में अभी आया कि आपने कहा कि बीइंग अ स्टूडेंट बहुत डाउट्स होते हैं कॉलेज में कि क्या ये सही पाथ हुँ, है, क्या ये हुँ, सही करियर है, क्या ये सही हुँ, हुँ, डायरेक्शन है। हुँ, तो हुँ। क्या आपके आपके लाइफ में भी वैसा कुछ मोमेंट था और कैसे आपने ओवरकम किया उसे? या ऑफ कोर्स, बिकॉज़ मेरा जो थीम था वो था ही ऐसा, बिकॉज़ आई वाज़ फेसिंग मेनी डाउट्स लाइक सेम थिंग, फियर ऑफ जजमेंट। सो सेम आई वाज़ फीलिंग द सेम थिंग, लाइक फियर ऑफ जजमेंट, कि मेरे काम को एक्सेप्ट किया जाएगा सोसाइटी में या नहीं। बिकॉज़ आई फेस दैट व्हेन माय फैमिली objectifying about my work and rejects it. सो वो वहाँ से मुझे एक सेल्फ डाउट आने लगा दैट कि क्या इसका फ्यूचर होगा। लाइक यू सेड कि काम को बेचना, सेल करना भी ज़रूरी है। सो एक ये डाउट भी बहुत बड़ा था कि क्या मेरा काम, इस तरीके का काम सेल कभी होगा कि नहीं होगा? कोई अम मार्केट में इसको किस तरीके से देखा जाएगा, इसको किस तरीके से, इसके लिए कैसे व्यूअर्स, इनका क्या पर्सपेक्टिव होगा? सो ये जो डाउट है ना, ये हमेशा आया, ऑलवेज़। बट आई थिंक एवरी टाइम, एवरी डाउट रिफाइंड माय क्लैरिटी,
लाइक आपको जब भी कोई डाउट आया, मुझे उस डाउट्स ने ही मुझे अपने आप एक क्लैरिफिकेशन दिया, बिकॉज व्हेन आई गॉट सम क्रिटिसिज्म प्लस एप्रिसिएशन, दोनों ने ही मुझे एक क्लैरिटी दिया है हमेशा कि मुझे किस वे में, किस डायरेक्शन में जाना है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बट मेरे को लगता है कि जब अभी पेरिस में जो आपका लास्ट ईयर एग्जीबिशन हुआ, उसने काफी या वाहवाही बटोरी, तो क्या उस पे कुछ दो शब्द, क्योंकि वी वर्क वेरी हार्ड टू मेक दैट हैपन। No, it was a great experience because you did a great job. कम उसमें ऑन। मेरा ऐसा कोई हाथ नहीं था। नो नो, तुम आपने एज अ क्यूरेटर बहुत अच्छा काम किया। वहाँ जो फुटफॉल रहा वो बहुत अच्छा रहा, और जिस तरह से अप्रिसिएशन भी मिला आर्ट वर्क को, इट वाज रियली ग्रेट। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड आई होप कि वो फ्यूचर में भी इस तरीके से हम साथ में एग्जीबिशंस करें। So yeah. बिल्कुल। Those who don't know, Atliun represent Shilly Gupta as on our artist roster. So अभी बहुत सारे नए नए काम और बहुत सारी अच्छी अच्छी एग्जीबिशंस आने वाली है। सो मेक श्योर आप फॉलो करते रहे शैली गुप्ता Sure, को। sure, sure. राइट। Yeah. अच्छा शैली, एक एक और सवाल आया हमारी कॉन्वर्सेशन से, Yeah, yeah, sure. है ना। एज आई सेड, लाइक Yeah, कोई yeah. कोई कोई Q&A नहीं है, राइट, बस एक कॉन्वर्सेशन है जो Yeah, हो रही yeah. है, Sure. राइट। Sure, तो sure. कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी में जब आपने मास्टर्स की, बैचलर्स की जब आपने, राइट, तो कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए या फिर कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हुई जो आज भी आप अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं? Um, like I said before this, like जो conversations को नहीं कहूँगी मैं, one memory, like my mentor, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, सर का, उन्होंने एक क्रिटिसिज्म दिया था मेरे एक आर्ट वर्क पे। सो मुझे वो बहुत अच्छे से याद है, लाइक एज अ आई डोंट नो, वो जो क्रिटिसिज्म था वो एज अ मेंटोर था, एज एन आर्टिस्ट था, और एज अ मैन, आई डोंट नो। He said that your work is too bold, too like काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। आई डोंट नो उन्होंने वो जो क्रिटिसिज़्म दिया था, वो किस वे में दिया। सो एट दैट मोमेंट मुझे वो चीज़ थोड़ा-सा एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं। बट आई थिंक वो जो क्रिटिसिज़्म था मुझे एक डायरेक्शन भी दिया, बिकॉज़ मुझे वहाँ से एक सोचने का नज़रिया मिला कि मैं हमेशा ये नहीं सोच सकती कि मेरे काम को हमेशा एक एप्रिसिएशन मिलेगा, एक एक्सेप्टेंस ही मिलेगा। मुझे उस डायरेक्शन में भी सोचना है, जहाँ उस काम को लेकर के लोग एक क्रिटिसिज़्म भी देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लाइक सोसाइटी में खाली एक फीमेल फिगर नहीं है, एक मेल फिगर भी है, जो कुछ लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ एवरीवन हैव अ फेमिनिज़्म पार्ट। लाइक हर आदमी के अंदर भी एक फेमिनिस्ट नर होता और है। नारी, नर और नारी। नर या नर एंड नारी। या Yeah. Every female have a men part, every man have a female part. Like it is connected, like man and woman is connected. So अगर किसी आदमी के अंदर एक फेमिनिज्म है, वो इजीली शायद इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, बट when a man surrounded with some male ego or something, and like I टॉक्सिक don't have a word. मैस्कुलिनिटी। हाँ, like हाँ, I don't have that word, but उनके लिए शायद ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल है, और वहाँ से वो एक क्रिटिसिज्म आएगा, लाइक योर आर्ट वर्क इज टू बोल्ड। सो टू बोल्ड टू एक्सेप्ट, और टू बोल्ड टू लाइक टू, आई डोंट नो व्हाट टू से दैट, कि आप एक्सेप्टेंस के लिए उसको टू बोल्ड कह रहे थे कि आप आर्ट वर्क के लिए एज एन आर्टिस्ट। सो वो चीज़ मैंने वहाँ पे ही छोड़ दी। वो चीज़ मैं कहूँगी कि वहाँ से मुझे एक डायरेक्शन मिला था। सो इट इज़ नॉट अ डिस्करेजमेंट, आई टुक इट एज अ डायरेक्शन। दैट्स
दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वे टू सी, टू बी ऑनेस्ट, एंड मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सारे आर्टिस्ट इससे सीखे, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक सोचने का नया पहलू होता है, नया नजरिया होता है। Yes, yes, इट्स yes, लाइक अ yes. स्टेपिंग स्टोन रादर देन द रोड ब्लॉकर, राइट? तो Yeah, अगर yeah, हर yeah, कोई yeah. अप्रिशिएट कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो कोई किसी को तो बोलना चाहिए ना कि Of course, yeah, of course. Because जिस तरीके का काम है, every artist knows about their artwork, कि वो किस चीज पे काम कर रहे हैं. So ये चीज मुझे बहुत पहले से पता थी कि मुझे हमेशा अप्रिसिएशन तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है. Because बहुत ब्यूटी मैं अपने काम में खुद नहीं देखती थी. मेरा काम बहुत हमेशा से बोल्ड रहा. सो वो चीज अगर मैं कहूँ तो हर कॉमन पीपल तो डेफिनेटली उसको नहीं एकदम से एक्सेप्ट करते. उनके लिए आर्ट की डेफिनेशन ही बहुत डिफरेंट है. उनको उस चीज तक वहां तक आने में टाइम लगेगा. ट्रू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंडिया के अंदर आर्ट अंडरस्टैंडिंग लेमन तक नहीं पहुंची है, राइट? लोग या देखते हैं, उनके लिए आज भी आर्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए, या और एस्थेटिकली प्लीजिंग. या एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए, और यदि उनको लगता है कि अच्छा ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं या ये आर्ट कुछ कहना चाह रही है, तो थोड़ा सा खटक, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा हर कोई ऐसा है ना? क्योंकि यूथ चेंज हो रहा है, राइट? ड्रास्टिकली हम लोगों का माइंडसेट इवॉल्व हो रहा है, बट स्टिल एक वर्ग है सोसाइटी का जो आज भी सिर्फ आर्टवर्क को दीवार पे लगाने के लिए ही सोचता है, राइट? उनके या लिए सिर्फ ऐसा है कि कमरे में लगा हुआ है तो खूबसूरत लगना चाहिए, हॉल में लगा हुआ है तो खूबसूरत लगना चाहिए। इट्स नॉट बैड. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्ट फील्ड, कि आपको आर्ट को किस बेसिस पे बनाना है. लाइक आपको किस रीजन के लिए बनाना है. अगर आपका आर्टवर्क कमर्शियल है, सो आप उसको कमर्शियली बना सकते हैं. उसमें कुछ गलत नहीं है. आपको हर एक आर्टिस्ट का एक अपना रीजन है आर्ट फील्ड में, कि वो बेचने के लिए काम कर रहा है, कि उसको कुछ अवेयरनेस के लिए काम करना है, और उसको सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है, और समथिंग डिफरेंट. लाइक एवरी आर्टिस्ट हैज देयर रीजंस. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि जो लोग काम दीवार पे लगाने के लिए बना रहे हैं तो वो गलत हैं. वो उनका चॉइस है. दे हैव अ चॉइस कि उनको काम बेचना है, लगाना है, क्या करना है. उनको पॉलिटिकली सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होना है. सो उनका अपने अपने रीजंस हैं. दैट्स अ वेरी थॉटफुल रिस्पॉन्स, टू बी ऑनेस्ट। तो क्योंकि जब मैंने बोला कि दीवार पे लगाना है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में, राइट? सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट। या इफ आई वुड हैव स्ट्रेट अवे आस्क्ड यू आपका क्या सोचना या है ऐसा, या ओके, राइट? बट गिविंग अ सिनेरियो, that's true. Who are we to judge to anyone? क्योंकि हर किसी की अलग, या ऑफ कोर्स. हाँ, हर किसी की अलग अलग इच्छाएं होती है, परेशानियां होती है, या फिर खुशियां होती है, राइट? तो उनके लिए वो पेंटिंग्स बनाते हैं, लगाते हैं, राइट? बट ये कॉन्वर्सेशन अगेन ऑफ ट्रैक जा रहा है थोड़ा सा, है ना? तो या तो इससे अब ना, क्योंकि ये अच्छा, क्योंकि ये मीट द आर्टिस्ट टेक्निकली हमारी एग्जीबिशन है ऑनलाइन, जो कि जिसका टाइटल है डिजायर विदाउट अपॉलजी, जो कि शैली या गुप्ता की सोलो एग्जीबिशन है, उसके लिए, राइट? तो क्योंकि टाइटल बहुत पावरफुल है, डिजायर विदाउट अपॉलजी, राइट? तो क्या डिजायर का मतलब है आपके लिए पर्सनली? about me, like desire for me, it's totally truth. Like एक जर्नी है ट्रुथ से. ट्रुथ सच्चा है, सच है. लाइक ऑनेस्टी. सो डिजायर फॉर मी, इट्स अ ट्रुथ बिफोर कंडीशनिंग. Like it is a instinct or emotional, physical, intellectual. So it is the part of all of us, that society, how to society adapt this. Like society tries to soften or silence this, especially in women.
So, desire is not shameful. It is a life force. So, for me, it is a journey from the truth to acceptance. Beautifully said. That's what I can say. A journey from truth to acceptance. And it is, Yeah, I believe it's different for every individual. The moment they start yeah. accepting they start blooming like a flower, right? So why there's a, because it's different for everyone. And as you said, society doesn't accept women Hmm. desires that much, right? So why does desire need to exist without an apology? Because when we talk about the apology, you can connect it with the guilt, like apology and guilt. And according to me, whether it is a love, freedom, ambition, touch, desire, I think all these should not need require any justification. So justification and apology both, I don't think उनका कुछ काम है यहाँ पे। अगर आप किसी डिजायर की बात कर रहे हैं, डिजायर विदाउट अपॉलजी, बिकॉज डिजायर एक्सेप्टेंस है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है वो, वहाँ और किसी का कोई मतलब नहीं है। सो अपॉलजी एंड जस्टिफिकेशन, no need, no need of justification is there, no space of justification. डिजायर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की अपनी है। अगर आप उसको किसी दूसरे के साथ मतलब एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी वहां पे आ जाती हैं, तो वहां पे जस्टिफिकेशन रहेगा। सो आई डोंट थिंक डिजायर नीड्स एनी apology. बट you used a very interesting word, justification. और जब justification आएगा तो apology आएगी. This is something you said. आएगी। क्यों? Why? It's not about only desire, like any self emotion, like एक love है, hate है, freedom है, any ambition है, ये एक person का अपना है, even a spiritual thing, like now आई थिंक मैंने एक चीज फील करी है, स्पिरिचुअलिटी भी एक अपनी इंसान की अपनी जर्नी है, हर एक Hmm. पर्सन की अपनी जर्नी है। सो जो भी एक पर्सन का अपनी एक इमोशन है, वहाँ जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वहाँ अपॉलजी की जरूरत नहीं है, वो उसका सेल्फ जर्नी है, वो किसी भी चीज में हो। सो द डिजायर इज ऑल्सो इन द सेम फील्ड, लाइक वो उसी ट्रेन में है, ये सब एक ही ट्रेन में है, और इनको अपॉलजी, जस्टिफिकेशन, एनी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं होना चाहिए। Fair enough. Okay. Okay. But do you think कि desire political है in nature? ये सब कनेक्टेड है, पॉलिटिकल। जब चीजें सोसाइटी के साथ हो जाती हैं कनेक्टेड, लाइक व्हेन सोसाइटी टोल्ड यू हाउ टू बिहेव, हाउ टू Yeah. टॉक, एंड हाउ टू carries your emotions, then it become political, like system challenges you. True. So it all connected together, because आप जब पर्सनल अगर आपका सोसाइटल हो जाता है, तो वो पॉलिटिकल भी हो गया। आप Hmm. जहाँ सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है चीजों में, और एक क्या व्हाट टू से दैट, लाइक जब एक मेंटालिटी को एक सोसाइटी धारणा. राइट नाउ No worries. No worries. धारणा, या एग्जैक्टली धारणा, Okay. एक धारणा धारणा बना करके ऐसे रिप्रेजेंट करती है। Yeah. सो तब चीजें पॉलिटिकल हो जाती हैं। सो Well said. डेफिनेटली डिजायर एज पॉलिटिकल, कि अगर वो पर्सनल है तो इट्स फाइन, बट अगर उसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, देन इट बिकम पॉलिटिकल। Fair enough. और जनरली इन विमेन कॉन्टेक्स्ट वो पॉलिटिकल ही रहती है.
Yeah. Okay. Fair enough, fair enough. That, and I totally understand this thing. Because we look world from two different perspectives. Male look from male perspective, females look from female perspective, right? So as like Yes. it's same thing but two different angles, right? Yeah. So Yeah. कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ काम बनाया हो और that work surprised you? Like, Uh, Always, it's a personal experience. Like when we doing our work, every time surprising thing is कि जब मैं काम को बिना किसी सोच करके बनाती हूँ. Like many artists are doing some artworks, like they are planning the proper um, स्केचेस एंड हाउ मतलब क्या उसमें टेक्निक यूज करेंगे, कैसा वो दिखेगा. आई नेवर प्लान दिस, आई नेवर डिड दैट. मैं हमेशा काम को अनप्लान ही करती हूँ. तो वहाँ एक सरप्राइजिंग मोमेंट रहता है जब वो आर्टवर्क एक इमोशंस के साथ वो एक पूरा बनता है. सो वहाँ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है हमेशा. सो एवरी आर्टवर्क सरप्राइजेस मी है. so आपकी हमेशा मुझे. yeah, go on, sorry. Yeah, yeah, sure, sure, sure. Continue. Okay. Carry So on. आपके आपकी आर्टिस्टिक जब जब आप काम बनाते हैं तो वो जर्नी कैसी दिखती है? Hmm. लाइक पहले आप फील करते हैं आर्ट वर्क, आई डोंट नो, कैसे 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 आप डिसाइड करते हो कि ये बनेगा? नो, आई नेवर डिसाइड कि ये बनेगा. मैं हमेशा कैनवस को लेकर के एक लाइक कुछ फॉर्म्स क्रिएट करती हूँ हमेशा से, एंड देन उसमें किस तरीके से कलर्स को यूज करना है, क्या वो फॉर्म लाइंस एंड फॉर्म हमेशा अपने आप क्रिएट होती है. और उसके अंदर आप आज जो फील कर रहे हो, आप एक आर्टवर्क हमेशा एक दिन में कंप्लीट नहीं करते. ट्रू। इट नीड्स मैनी डेज. सो आज जो मेरे इमोशन है, कल वो मेरे कुछ और इमोशंस होंगे व्हेन आई एम डूइंग माय आर्टवर्क. सो उस इमोशंस के, उस इंस्टिंक्ट्स को लेकर के, जो मेरे उस टाइम पे इंस्टिंक्ट्स हैं, उसी के साथ मैं एलिमेंट्स को चूज करती हूँ कि किस एलिमेंट्स को कहाँ किस इमोशंस के साथ होना चाहिए उसके अंदर. सो लाइंस, फॉर्म्स, कलर्स, ये मुझे हेल्प करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. और वो जो एक बैकग्राउंड, स्पेशली बैकग्राउंड ऑलवेज हेल्प मी कि उस बैकग्राउंड के साथ क्या एक इमोशन मैं दिखाऊं अपने आर्टवर्क में, और उस तरीके से मैं फिगर्स को चूज करती हूँ. So it's a very intuitive process when it comes to start with the canvas. It's just one notion which you use, and then intuition Yeah. follows you throughout the follows you in your journey. So is there any like how will I say, like have you ever because it's very intuitive and it's something which you feel personally, right? So have you ever felt afraid or uncomfortable showing any of your work publicly, or a body of work which you have made? Many times. सेम आई सेड दैट फियर ऑफ जजमेंट. ये मुझे डाउट हमेशा बहुत बार आया कि दैट शुड आई शोकेस माय आर्टवर्क और नॉट, लाइक मुझे करना चाहिए या नहीं. और जो ये हेजिटेशन है, ये बहुत बार रहा है. बिकॉज जब हम आर्टवर्क बनाते हैं, वो मोमेंट बहुत डिफरेंट होता है. उस मोमेंट में आप अगर मैं कोई बोल्ड आर्टवर्क बना रही हूँ तो मेरे माइंड में एक बोल्डनेस, एक एक हार्श इमोशंस भी रहते हैं. दैट अगर मैं उस कैरेक्टर में घुस के उस चीज को, लाइक एक एक्टर भी जब कोई Mhm. कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, कैरेक्टर के अंदर घुसते हैं, तो उसके अंदर उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं. सेम एज एन आर्टिस्ट, मैं एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस आर्टवर्क में, जो अपने डिजायर्स को हाइड करके और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. हिडन डिजायर्स हैं जो बहुत सारी चीजों के साथ कनेक्टेड हैं. सो वो जो जब मैं उस करेक्टर में हूँ, तो मैं वहां पे मेरे अंदर एक हेट्रेड भी रहेगा, एक लव भी रहेगा, हर इमोशंस
वो बनाते वक़्त मेरे इमोशंस डिफरेंट होंगे। जब उस आर्टवर्क को कंप्लीट करने के बाद एज़ अ व्यूअर मैं उस आर्टवर्क को खुद देखती हूँ, तो मुझे कई बार डाउट्स रहते हैं कि इट इज़ टू बोल्ड एनीबॉडी एक्सेप्ट दिस और नॉट। सो ये हेजिटेशन रहता है, स्पेशली हेजिटेशन और फ़ियर ऑफ जजमेंट हमारे अपने लोगों से रहता है, जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, हमारे रिलेशंस में हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं। सो वहाँ मुझे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। एक एक फ़ियर रहता है that my हम्म, family will accept this, my close ones will accept this or not, because society आपके close ones से ही बनती है। जिनको आप नहीं जानते हैं, उनके जजमेंट से, उनके सोचने से आई डोंट थिंक कि आपको फ़र्क पड़ेगा। ट्रू, वाइजली सेड। क्योंकि जिनको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उन्हीं के पास ताकत होती है कि वो हमें हर्ट कर सके। यस, राइट। ट्रू। और सो ये हम लोग नहीं समझ पाते व्हाट सोसाइटी इज़ लाइक। हमेशा से कहावत है, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों ट्रू, से बनती है सोसाइटी। सो ट्रू। 4 लोग कोई नहीं है, 4 लोग आपके क्लोज़ वन्स हैं। सो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके नोन, आपके जिनके साथ आप एज़ अ प्रोफ़ेशनल करियर में भी होते हैं। सो दीज आर द पर्सन जो आपकी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। एज एन आर्टिस्ट जब हम अपने आर्ट वर्क को एग्जीबिशंस में या गैलरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ हर चीज़ डिफरेंट होती है। वो वाइब और वो एनवायरनमेंट डिफरेंट है। उस जगह पे आपको एक्सेप्टेंस डेफिनेटली मिलेगा। ये ये गारंटी है कि वहाँ आपको हमेशा एक्सेप्टेंस मिलेगा, बिकॉज़ वहाँ का क्राउड ही आर्ट से रिलेटेड है। द मेन थिंग, मेन फाइट एंड मेन जजमेंट जो आपको चाहिए, वो मेन सोसाइटी द कॉमन पीपल। अगर मेरा काम कॉमन पीपल से रिलेटेड है, तो मुझे जो एक्सेप्टेंस है, जो एक अवेयरनेस है, वो कॉमन पीपल के अंदर दिखाना है कि वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कैसे अडैप्ट कर रहे हैं। अगर हम डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं, वुमेन हिडन सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमन पीपल को ही हमें अवेयर करना है ना। आर्टिस्ट तो ऑलरेडी अवेयर है। आर्ट में आर्टिस्ट, आर्ट फील्ड के जितने लोग हैं, वो ऑलरेडी अवेयर हैं। उनका माइंडसेट ऑलरेडी बहुत फ्रीडम उनको मिला है, उन्होंने इतना एक्सप्लोर किया है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जो कॉमन लोग हैं, जो आर्ट फील्ड से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आई टोटली एग्री, क्योंकि people who are in creative industries they have a different mindset to think, राइट। वो चीजों को बहुत हुँ। अलग नजरिए से देखते हैं, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होती है चीजों को लेकर, राइट। बट इससे इसे एक ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे को पूछनी है आपसे, लाइक कि बीइंग अ विमेन आर्टिस्ट, राइट। सो क्या ऐसा आपको लगता है कि दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग विजिबिलिटी डिफरेंटली देन मेल आर्टिस्ट? क्योंकि आपने कहा कि सोसाइटी जज करती है, और जज करती है तो लेबल लग जाता है, राइट। अरे भाई ये ऐसे ही है, राइट। लाइक आई थिंक वुमेन्स के पास एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेन। ये एक खैर डिबेट हो जाएगा, बहुत डिफरेंट डिबेट है ये, मेन एंड वुमेन, वो कभी खत्म नहीं होगा। बट या अभी बहुत कुछ बाकी है सेम लेवल पर आने के लिए। सो जो वुमेन आर्टिस्ट हैं, उनको अभी भी बहुत कुछ नेगोशिएट, जैसे कहा आपने बोला कि या दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग इन आर्ट फील्ड, बिकॉज़ मेन को एक एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी मिलता है अकॉर्डिंग टू द वुमेन। वुमेन अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रही है, लाइक हम अपने आर्ट वर्क की ही बात करेंगे, अपने आर्ट फी अब जो हमारा एक थीम चल रहा है। सो ये कई बार क्वेश्चन्स भी आते हैं कि जो चीज़ मैं अपने आर्ट वर्क में रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, क्या वो चीज़ मैं सेम फ़ील कर रही हूँ?
या वो मेरे खुद के इमोशंस हैं या मेरे किसी क्लोज्ड वन के इमोशंस हैं। सो वहाँ पे एक ये चीज़ आती है। सो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं पीछे लेके जा रही है। सो ये कहीं न कहीं मेन एंड वुमेन अगर यही सेम चीज़ एज़ अ कोई मेल पर्सन या मेन आर्टिस्ट ये चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहा होता, वहाँ एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता कि वहाँ उनको हमेशा एप्रिसिएशन मिलता। लाइक एक मेल फिगर एक फीमेल फिगर के फीमेल डिज़ायर्स के बारे में बात कर रहा है तो डेफ़िनेटली वो ग्रीन फ्लैग है। तो ये चीज़ भी आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगी। आई एम जस्ट सेइंग दिस कि हाँ, है अभी भी ऐसा बहुत चीज़ें। दोनों की अपनी-अपनी अलग स्ट्रगल्स है। Yeah, इजी वे yeah, आउट। yeah, ओके। दैट yeah. टोटली मेक्स सेंस। और हम नहीं चाहेंगे आप इस हुँ, पछड़े में फंसे, है ना? तो है ना, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, राइट? तो yeah, है ना, थोड़ा-सा आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और फ्यूचर जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, राइट? सो yeah, sure. अभी कुछ नई नई सीरीज़ आप जिसके बारे में सोच रहे हो या आप शुरू करेंगे, राइट? और या फिर अपनी प्रैक्टिस को आप अगले 1 साल के अंदर कहाँ देखते हैं? आई एम सर्चिंग अबाउट लाइक मैंने अभी तक आर्ट वर्क्स जो अपने क्रिएट करे हैं, सिर्फ सीरीज हैं वो मेरे कैनवस और पेपर पे ज़्यादा रहे हैं। सो आई एम सर्चिंग अबाउट सम डिफरेंट मीडियम्स लाइक मैं किसी और मीडियम्स में आर्ट प्रैक्टिस में थोड़ा मतलब ट्राई करना चाहती हूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। सो 1 साल में आई थिंक मैं कुछ और नए मीडियम्स में कुछ काम करूँगी। सो लेट्स सी ओके, कैसे दैट रहता है साउंड्स दैट प्रैक्टिस। साउंड्स दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। कौन-सा नया मीडियम सोच रहे हैं आप? या नो नॉट डिफरेंट काफ़ी अलग डिफरेंट मीडियम नहीं रहेगा। लाइक इन द सेम फील्ड इन द सेम जो अभी तक मेरा काम रहा है उसी से ही रिलेटेड कोई ऐसा मीडियम जिसमें मैं अपने एक्सप्रेशंस को अपने जो थॉट्स हैं उनको ज़्यादा और अच्छे से दिखाऊं लाइक अभी तक मेरा काम मोस्टली थ्रेड में रहा है। सो थ्रेड के अलावा नाउ आई एम सर्चिंग फॉर डिफरेंट मीडियम। That's very interesting, to be honest, and I'll be looking forward to see what the new thing will be coming. So last question before we leave, right? Okay. So if you have a dream exhibition, right? What it's gonna look like? Like what will happen in that dream exhibition? ड्रीम एग्जीबिशन यार ऑलवेज आर्टिस्ट जो ड्रीम एग्जीबिशन की जो एक इमेजिन करता है वो बहुत बड़ी होती है। सो आई एम थिंकिंग दैट कि एक एग्जीबिशन जिसमें एक नॉट आर्टिस्ट मैं सारे आर्टिस्ट को नहीं बोलूँगी। मैं चाहती हूँ एक ऐसी एग्जीबिशन जिसमें मेरे काम के साथ कनेक्ट करने के लिए कॉमन पीपल जो हैं वो आएँ। जो उस चीज़ के साथ कनेक्ट करें और वहाँ वो जो क्राउड हो वो मेरे काम के साथ उस चीज़ के ऊपर बात करें, उस चीज़ को समझे। एक अवेयरनेस वाला जो एक एग्ज़िबिशन है मैं कुछ वैसा चाहती हूँ। नॉट अ सिंपल एग्ज़िबिशन कि एक एग्ज़िबिशन किया, आर्टिस्ट को इनवाइट किया, जो क्राउड है वो टोटली आर्ट फील्ड से मैं वैसा एग्ज़िबिशन नहीं जो मेरे काम जिस चीज़ से एक मेरा काम एक सोसाइटी बेस्ड काम है। लाइक आप सोसाइटी में किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हो, एक एक मेंटालिटी को चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे वो जो एक सक्सेस जो आएगी, वो तभी आएगी जब इस चीज़ को एक्सेप्टेंस कॉमन पीपल उस चीज़ को समझेंगे और जानेंगे उसके बारे में। वो एक मेरा एक ड्रीम एग्ज़िबिशन है कि वो जो क्राउड हो, वो क्राउड डिफरेंट होना चाहिए। आम आदमी तक खास बात पहुंचानी है। हाँ, येस लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ आर्ट को आज भी गैलरी तक ही बाउंडेड किया गया है। सो वो एक वे
ढूँढना बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप उसको आर्ट को कैसे कॉमन पीपल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। और टू बी ऑनेस्ट, आर्टलियन का एक मिशन का जो सबसे पहला, जब हम लोगों ने ये स्टेब्लिश की थी, राइट, तो जो सबसे पहली चीज हम लोगों के लिए थी वो थी आर्ट को एक्सेसिबल बनाना है हर किसी के लिए, राइट। तो या इसी इसी वजह से हमने पब्लिक स्पेसेस में भी आर्ट किया है, हमने उन गैलरीज में भी आर्ट शोज किए हैं जहाँ पे आम लोग चढ़ रहे हैं, कोई आर्ट फील्ड का बंदा नहीं चढ़ता, राइट। हम लोगों ने हुँ। वर्चुअल एग्जीबिशंस करे हैं ताकि हर कोई अपने फोन से, क्योंकि फोन सबके पास है अब, राइट, तो हर कोई अपने फोन से एग्जीबिशंस तक पहुंच सके, जो नरेशंस है उन सब के बारे में जान सके, राइट। तो आई थिंक दैट्स समथिंग। और ना ये ना ये लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे कि जब एक बंद रूम के अंदर चार लोग फैंसी बातें कर ले और चले जाए, इट वोंट चेंज एनीथिंग, राइट। हम लोगों ने चेंज किया है और हम जानते हैं कि चेंज आता है, राइट। टाइम लगता है, बहुत जल्दी नहीं आता, चेंज आता है, राइट। Yeah, I think art needs change. Like चेंज बहुत ज़रूरी है। हम वही एक पुराना पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं कि आर्टिस्ट आर्ट गैलरीज़ में अपने आर्ट वर्क शोकेस कर रहा है, सम अदर व्यूअर्स आ रहे हैं एंड कोई आर्ट वर्क्स खरीद रहा है, कोई आर्ट वर्क बेच लाइक वी नीड सम डिफरेंट पैटर्न। अब अभी बहुत हो गया है। आई थिंक वी शुड स्टॉप this and we need to display our artwork differently and we should connect common people to art so that खाली आर्ट फील्ड तक नहीं बल्कि ये कॉमन लाइफ में भी लोगों तक पहुँचे और स्पेशली अगर हम किसी सोसाइटल किसी एक सोशल थीम पर बात कर रहे हैं, तो वो सोशल थीम खाली आर्ट फील्ड के 4 लोगों के बीच में बात करने के लिए नहीं है। सोशल थीम तब सक्सेसफुल होता है जब वो कॉमन पीपल लोग उससे अवेयर रहते हैं। लाइक सिंपल थिंग लाइक नो टोबैको, नो अल्कोहल ये एक सोशल थीम है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सिर्फ़ किसी आर्टवर्क के अंदर दिखा के उनके बीच में बात कर रहे हो वो डिफरेंट है। अगर आप उसको कॉमन पीपल तक तब पहुँचेगा जब वो एक ज़रिए लाइक यू कैन पब्लिश इट इन न्यूज़पेपर और आप कॉमनली लोगों के साथ जाके कनेक्ट करते हो, तब आप समझाते हो, तो वो एक सक्सेस हुआ। कि ये चीज़ गलत है, लोगों तक पहुँची वो चीज़ कि ये गलत है, उनको अवेयरनेस मिली। सेम चीज़ अगर आप आर्ट को सोशल थीम के साथ कनेक्ट कर रहे हो, सो वी शुड कनेक्ट विद द कॉमन पीपल। तो आप, सॉरी, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, जस्ट दिस या, कॉन्वर्सेशन श्योर, कैन श्योर। नेवर एंड, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू हेयर एंड टॉक। सो अगर आपको मौका मिले कि आपको ये कॉन्वर्सेशंस आम लोगों तक पहुंचानी है, तो आप कैसे करना चाहेंगे? अम, आई थिंक हम विजुअल आर्ट का जो एक ज़रिया है, वो है देखना, लाइक विजुअली। बट कॉमन पीपल नहीं उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते। मैंने ये पर्सनली फ़ील किया है कि आर्टिस्ट को अपने काम के बारे में बताना पड़ता है। वी हैव टू टॉक। ये जो एक जो ये कन्वर्सेशन है, टू वे कन्वर्सेशन, एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, देन वो बोल रहा है, सुन रहा है। ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो कनेक्शन है, यही लोगों तक पहुँच सकता है। सो आई थिंक खाली आर्टवर्क को दिखाना इज़ नॉट ओनली थिंग। हमें उसके बारे में बोलना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए आई थिंक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इज़ द अ, ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म इन टुडेज़ वर्ल्ड। लाइक आज के टाइम में सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा अ, बिगर लेवल पर जा चुका है लाइक वर्चुअल एग्ज़िबिशन की एक जो अ, सक्सेस है वो एक अलग है। आप ऑफ़लाइन आजकल हर कोई ऑनलाइन अवेलेबल है।
सो आई थिंक मैं अगर कॉमन लोगों के साथ कनेक्ट करूँगी, आज हर एक पर्सन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द थिंग जहाँ हम कॉमन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Yeah, I think we should wind up. Thank you. Thanks a lot, Shelly. या Thank you for giving us your precious time. And those who haven't seen the exhibition, please visit artlion.com. Exhibition is live till 15th of March. So you still have 15 days to go. Right. So just go in, have a look, and give us your feedback. And please follow Shelly on Instagram. And Shelly, what's your Instagram handle? Gupta.Shelly2209. Sounds great. Thank you. So please follow Please Shelly. please follow. Yeah, and if you have any doubts or queries, comment us below and or just reach out to us over DMs or mails, right? We'll be more than happy Yeah. to assist you for anything. Thank you. Thanks a lot, Shelly, for giving your time today, and I'll see you soon. We have another session on 5th. Thank you, Vikas. Thank you, Artloon. Thank you so much for conducting this session.